वेस्ट बेंगলৰ খবৰ ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ অভিযোগক লৈ নিখা কলকাতাত হাই ভোল্টেজ ড্ৰামা দেখিবলৈ পোৱা গল। ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ভিতৰত 4 ঘণ্টা সময় কটালে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত দুপৰ নিখা মমতা বেনাৰ্জীক দেখা গল। বিজেপিয়ে ইভিএম টেম্পাৰিং কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ মমতা বেনাৰ্জীৰ। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ বাহিৰত ভিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ। নিখা 12:07 ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল মমতা বেনাৰ্জী। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একেই অভিযোগ উত্তৰ কলকাতা আৰু পূব কলকাতাৰ টিএমচি প্ৰাৰ্থীৰ। নিখা ষ্ট্ৰং ৰুমৰ বাহিৰত জয় শ্ৰীৰাম জয় বাংলা ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হল। তৃণমূলৰ অভিযোগক লৈ নিশাই পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই নটচাট কৰিলে টিএমচিৰ অভিযোগ। পুনৰবাৰ জনাইছো ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ অভিযোগক লৈ নিশা কলকাতাত হাই ভোল্টেজ ড্ৰামা দেখিবলৈ পোৱা গল। ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ভিতৰত 4 ঘণ্টা সময় কটালে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত দুপৰ নিশা মমতা বেনাৰ্জীক দেখিবলৈ পোৱা গল। বিজেপিয়ে ইভিএম টেম্পাৰিং কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মমতা বেনাৰ্জী। আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ বাহিৰত ভিৰ কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু তৃণমূল কৰ্মীসকলে। নিশা 12:07 ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছিল মমতা বেনাৰ্জী। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল উত্তৰ কলকাতা আৰু পূব কলকাতাৰ টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। নিশা ষ্ট্ৰং ৰুমৰ বাহিৰত জয় শ্ৰীৰাম জয় বাংলা ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা। তৃণমূলৰ অভিযোগক লৈ নিশাই পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু সেই সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই নটচাট কৰিলে টিএমচিৰ অভিযোগ। আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। পশ্চিমবংগত যেহেতু বিভিন্ন সংস্থাই যি এক্সিট পোল প্ৰকাশ কৰিছিল পশ্চিমবংগতো এনডিএৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আসলতে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ইংগিত বহন কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। বিভিন্ন ষ্ট্ৰং ৰুমসমূহত তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিল, গৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। সেয়া ইভিএম টেম্পাৰিং অভিযোগ এয়াই প্ৰথম নহয়, পূৰ্বেও মমতা বেনাৰ্জীয়ে এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আৰু দুপৰ নিশালৈকে মমতা বেনাৰ্জীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ষ্ট্ৰং ৰুমত 4 ঘণ্টা সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত তেওঁ দুপৰ নিশা এনেদৰে ওলাই আহিছিল। আৰু মমতা বেনাৰ্জীক প্ৰত্যক্ষ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৃণমূলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে জয় শ্ৰীৰাম জয় বাংলা ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল। ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ অভিযোগক লৈ নিশা কলকাতাত এই হাই ভোল্টেজ ড্ৰামা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ভিতৰত 4 ঘণ্টা সময় কটালে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত দুপৰ নিশা মমতা বেনাৰ্জীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ইভিএম টেম্পাৰিং কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মমতা বেনাৰ্জীয়ে। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো কিন্তু ষ্ট্ৰং ৰুমৰ বাহিৰত ভিৰ কৰিছিল বিজেপিৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে। আৰু নিশা 12:07 ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা এইদৰে ওলাই আহি মমতা বেনাৰ্জীয়ে পুনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ অভিযোগ আনিছিল। এই অভিযোগ কেৱল মাত্ৰ মমতা বেনাৰ্জীয়ে যে আনিছে সেয়া নহয়, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল উত্তৰ কলকাতা আৰু পূব কলকাতাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। আৰু নিশা ষ্ট্ৰং ৰুমৰ বাহিৰত জয় শ্ৰীৰাম জয় বাংলা ধ্বনি দিয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। তৃণমূলৰ অভিযোগক লৈ নিশাই পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই নটচাট কৰিছিল টিএমচিৰ সেই অভিযোগ। हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग बांग्ला ऑलरेडी बोल दी। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डेवलप को इधर उधर कर रहा है। और देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊं। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंट्री करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड up to the sealed room
not inside the seal room but outside at the door of seal room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे, उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों के लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। वो यहाँ से बनाएगा, उसको भी बोल दिया। जो बनाते हैं, जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी जरूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का जो है उसका साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है, तो बाहर में वो लोग बारिश में भीज रहा था। जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3 3rd फ्लोर में कैसे देखेगा? और इनसाइड द बिल्डिंग वॉज टोटली क्लोज्ड, बिल्डिंग वॉज टोटली क्लोज्ड। लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे देखेगा? इधर से कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे वो देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसका माथा के ऊपर में एक कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहते हैं, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहते हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हाँ, माने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे, तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो, हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है भाई। राज्य पुलिस इज नॉट वर्किंग अंडर अस। जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, दे सेड दे आर अंडर द इलेक्शन कमीशन एंड दिस सुपर पावर, सम सुपर पावर इज वर्किंग एंड प्रेशराइजिंग देम, एंड एवरी डे दे आर कॉलिंग थ्रू वीडियो ऑफ द मीटिंग और द व्हाट्सएप, और उसको चमक देता है, उसको चमकाता है कि आप लोग को पेंडिंग कर, आपको केस लगा देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वर इज ओनली देयर, दे डोंट हैव एनी रोल टू प्ले अबाउट दैट। ये भी बोला, कोर्ट बोला है तुम्हें अरेस्ट नहीं करोगे, लेकिन उसका बाद में भी बोलता है कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मारेंगे। अरे ऑब्जर्वर तो 2 दिन बाद निकल जाएंगे, लेकिन जो लोग करते हैं उसका ऊपर तो केस चलेगा ना। हम तो कंटेम्प्ट कर दिया, कंटेम्प्ट। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आता है, क्यों आया है? करने का कोशिश तो था ना, क्या किया कल से हमारे को पता नहीं है। सील किया है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया, बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे, वो फुटेज। अरे भाई वही तो मैंने पूछा, पहले ये लोगों ने बोला हमारा पोस्टल बैलेट चल रहा है 12 में, लेकिन लास्ट में आरों ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट इधर नहीं है। लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो 12 में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे, किसी को तुमको आपको सेग्रीमेंट भी करना है, तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए। ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। दीदी एग्जिट पोल भी लगाएंगे, एग्जिट पोल बीजेपी का दोपहर 1 बजे 1 PM at 8 minutes 1.8 मीन्स 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका, हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल करना है। तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो जो हमको फोर्स करता है ऐसा दिखाने के लिए, अरे दिखाओ क्या है। तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो वो पूरा तृणमूल को 102 15 पे कर दिया था। अभी आप देखेंगे
कैसा होता है 2026 में 26 भी उतर जा सकते ये टेम्परिंग कौन कर रहा है? टेम्परिंग कौन रहा है आपके इलेक्शन कमीशन तो और वीडियो जारी कर देखो मेरे को इशारा ही काफी है Didi, do you know the reason why there are 4 days gap between counting and the last phase? yes this gap is because of some motivation